whatever the number of hours you are devoting every day, you should do it every day. Because see, as I have emphasized in the earlier lectures also, your own unique one-pager note is must in this UPSC preparation. So all these keywords जो जैसा हमने बताया था, मैं अपने lectures में बताता हूँ, जो इसमें 40 लेक्चर्स हैं मेरे स्ट्रेटजी लेक्चर्स, तो उसमें उसी टेम्पलेट को यूज करके दिस स्टूडेंट हैज मेड सच अ गुड नोट। सारे बच्चों के साथ 1 से 1.5 घंटा डेली हम 5 क्वेश्चन, पहले उनको हम कंटेंट देते हैं, उस कंटेंट को अब रीड करो, उस कंटेंट से फिर हम 5 क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू हैव टू आंसर दैट। सारा कंटेंट हम आपको देंगे और वो कंटेंट भी बहुत अच्छा कंटेंट होगा, आपके नोट्स बनवाएंगे, आपके आंसर राइटिंग करवाएंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन है टू योर प्री कम मेंस कम इंटरव्यू प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, how are you doing today? So we are less than 9 months from prelims 2026. 9 months से भी कम बचा है prelims 2026 में, और लगभग 1 साल बचा है, 1 साल से भी कम mains 2026 में, right? So in this video I will share some checklist कि whether you are doing this or not, because we are right now in the orange zone. When we say orange zone, it means कि दिस इज अ जोन जहां पे आप अपनी स्ट्रेटजी को रिवैम्प कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, एंड इफ यू डू दैट देन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इज सेव्ड। बट लेट्स से 2-3 महीने बाद अगर आप ऐसे ही इफ यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक, देन वी विल मूव टू रेड जोन। व्हेन वी मूव टू रेड जोन, इट मींस कि 2006 का आपका अटेम्प्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपके चांसेस खत्म हो गए, राइट? सो जस्ट सी दैट वेदर you are doing these things at this moment, and if you are not doing it, then please start doing it as soon as possible. ठीक है? सबसे पहली चेकलिस्ट है, are you studying 8 to 10 hours per day consistently? See, definitely you can crack UPSC by studying 5 hours also. Animesh Pradhan did that. But if you are a full-time aspirant and you are not doing any job, then it is expected from you that you should study 8 to 10 hours every day. And not just, studying every day, but whether you are consistent, because consistency is the key in this UPSC preparation. आप 15 घंटे पढ़ लो, लेकिन आप अगर 4 दिन पढ़ोगे हफ्ते में, तो आपका UPSC क्रैक नहीं हो रहा है। Whatever the number of hours you are devoting every day, you should do it every day. Every day. Right? So first checklist is this, that whether you are doing and whether you are doing every day or you are missing some days. ठीक है? So in our mentorship program Nitya Pragati, we have this student has made a proper kind of a tracker that how much was expected from her and how much was the actual output, right? And then he or she is sending it to the mentor, and the mentor is based on that giving him the review, right? Second, have you made your, and this is very important, have you made or are you in process of making your own one-pager notes for mains or not? Because see, as I have emphasized in the earlier lectures also, your own unique one-pager note is must in this UPSC preparation, right? If you are aiming for a single-digit rank. Have you seen any top ranker saying I have not made my notes? Right? So this is the time when you have to make your own unique one-pager notes for all the subjects. तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि देखो प्री और मेंस के बीच ना टाइम नहीं मिलता है नोट्स बनाने का, और आप सोचो अगर आप अभी ये एफर्ट लगा दोगे तो आप प्रीलिम्स के जस्ट बाद यू कैन स्टार्ट विद मेंस आंसर राइटिंग, बिकॉज योर नोट्स आर ऑलरेडी रेडी. You don't have to waste time on that, right? If you see our 1-to-1 mentorship program Nitya Pragati students, देखो कितने अच्छे नोट्स बना रहे हैं वो लोग. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी ये जुडिशरी है, देखो अब that student under the guidance of his mentor, he has made such a beautiful notes for Indian judiciary. अब जुडिशरी उसको रिवाइज करनी है, 10 मिनट में रिवाइज कर देगा थ्रू दीज नोट्स. इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर कीवर्ड्स लिखे हैं, यतो धर्म ततो जया, बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, चंद्रचूड का कोड दिया है, ठीक है, ऑल दीज, आत्मनिर्भर न्याय, ऑल दीज कीवर्ड्स he will use in his answers because he has made it in his notes. Similarly देखो कंक्लूजन के लिए he's made all those कीवर्ड, जस्टिस must reach the last mile, न्याय और न्यायिक स्वराज, ठीक है ना,
न्याय संकल्प. सो ऑल दीज कीवर्ड जो जैसा हमने बताया था, मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूं, जो इसमें 40 लेक्चर्स हैं मेरे स्ट्रेटजी लेक्चर्स, तो उसमें उसी टेम्पलेट को यूज करके दिस स्टूडेंट हैज मेड सच अ गुड नोट्स. सिमिलरली देखो रोल ऑफ द जुडिशरी में ही हैज मेड प्रॉपर एक्रोनिम्स. फॉर एग्जांपल देखो, सेफ जुडिशरी, सेफ जज, सेफ जज पीसी इज द एक्रोनिम ही हैज यूज्ड, और उसी बेसिस पे ही हैज मेड द पॉइंट्स रोल ऑफ जुडिशरी में. स्ट्रक्चरल, आर्बिट्रेटर ऑफ सेपरेशन, फेडरल इक्विलिब्रेटर, इन्फोर्सर ऑफ लीगल यूनिफॉर्मिटी. ठीक है ना. तो कितना इजी हो जाएगा फॉर हिम टू रिमेंबर, एंड एक एक पॉइंट के सामने एक एक केस का नाम लिखा हुआ है. सिमिलरली इश्यूज देखो, अगेन ही हैज मेड दिस एक्रोनिम व्हिच इज जजेस बैकलॉग, दैट्स द एक्रोनिम ही हैज मेड, एंड बेस्ड ऑन दैट ही हैज मेड दीज पॉइंट्स. ठीक है. और देखो हर एक पॉइंट के साथ सोर्स एनसीआरबी 2024, ई कमिटी एससी रिपोर्ट. अब सोचो इतने अच्छे नोट्स बनाने के बाद डेफिनेटली अगर जुडिशरी पे क्वेश्चन आएगा तो ही विल राइट एक्सट्रीमली गुड आंसर्स, राइट. और इसने नोट्स बनाए हैं, इसने ये अपने हिसाब से कि जो उसको याद रख सकते हैं उस हिसाब से इसने मेमोनिक्स भी इसमें यूज किए हैं. ठीक है. सिमिलरली देखो वे फॉरवर्ड, देखो यहां पे भी इसने यूज किया है जैप से एक और यहां पे देखो प्रॉपर इसने क्या क्या चीज करनी चाहिए, व्हाट शुड बी डन, प्रॉपर इसने यहां पे दिया है. तो ऐसे नोट्स बनाने हर एक टॉपिक के मीन्स को आपको, राइट. एंड दिस इज वेयर वी एम्फसाइज स्ट्रिक्टली इन अवर नित्य प्रगति प्रोग्राम. पहले मैं लेक्चर लेता हूं कैसे बनाने हैं नोट्स, फिर उसको इंप्लीमेंट कराता है आपका मेंटर, मेंटर रिव्यू करता है कि आप नोट कैसे बना रहे हो. ठीक है. देन नेक्स्ट चेकलिस्ट इज आर यू राइटिंग आंसर्स लाइक दिस. तो देखो ये एक स्टूडेंट है नित्य प्रगति का, एंड सी हाउ वेल ही इज राइटिंग आंसर्स. क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द की स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री section in India. How can these contribute to the environment of rural livelihood for food security? ये है. अब देखो इंट्रोडक्शन में ही स्टार्टेड विद इकोनॉमिक सर्वे, एज आई हैव सेड 8-9 टाइप के मैंने इंट्रोडक्शन में टेम्पलेट्स दिए हैं इकोनॉमिक्स के, तो ही हैज यूज्ड द इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा वाला टेम्पलेट. देन की स्ट्रेटजीज देखो, दिस इज हाउ यू नीड टू राइट GS3 आंसर्स. छोटे पॉइंट, ज्यादा डायमेंशंस. की स्ट्रेटजीज में ही इज गिवन ऑल दिस एग्जांपल, राष्ट्र गोकुल मिशन, data and everything to enhance sustainability. देखो यहां पे भी he has mentioned all these steps. ठीक है. उसके बाद देखो आप animal husbandry in improvement of rural livelihood, यहां पे भी देखो he has given all these examples. और प्रॉपर देखो कंक्लूजन भी आप देखोगे तो प्रॉपर विथ कीवर्ड आर्टिकल 48 जो मैंने कहा था DPSP से आप कर सकते हो, तो he has done that. And he has improved over time. Initially, he was not writing good answers. So that's how you need to not just write answers, but you need to improve over time. Right? And you need to ensure that your answers are reviewed properly. तो नित्य प्रगति प्रोग्राम में आंसर राइटिंग पे हम 3 लेयर्स पे काम करते हैं. सबसे पहले डेली आंसर राइटिंग हम करते हैं. डेली, एवरी डे अ मेंटर इज देयर, एंड सारे बच्चों के साथ 1 से 1.5 घंटा डेली हम 5 क्वेश्चन, पहले उनको हम कंटेंट देते हैं, उस कंटेंट को अब रीड करो, उस कंटेंट से फिर हम 5 क्वेश्चन पूछते हैं, एंड यू हैव टू आंसर दैट, राइट. यू हैव टू राइट दैट लाइव. सो एवरी डे अ मेंटर डज दैट. ठीक है. देखो इस तरीके से हम करवा रहे हैं. जैसे डे 1 का आंसर राइटिंग, तो ये हमने क्वेश्चंस दिए, मॉडल आंसर भी हम देते हैं. सेकेंड लेयर पे हम कैसे कराते हैं, वी हैव अ वर्कबुक, राइट, फॉर एवरी सब्जेक्ट. उस वर्कबुक में हम क्या करते हैं, हम जितने PYQs हैं टॉपिक वाइज प्रॉपर आपको एक ये मिलता है. इसमें आप लेट्स से यू हैव स्टडी द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट से जितने PYQs आए हैं वो आपको इस वर्कबुक में मिल जाएंगे, एंड यू कैन अटेम्प्ट दैट एंड शो इट टू योर मेंटर. मेंटर विल रिव्यू इट. ठीक है. एंड थर्ड लेयर पे हमारी मेंस टेस्ट सीरीज विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो एवरी वीकली, बाई वीकली यू हैव अ मेंस टेस्ट ऑल्सो. डेली लेवल पे, 2-3 दिन लेवल पे, एंड वीकली लेवल पे 3 लेयर्स पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो. बिकॉज मेरा मानना यही है कि यही टाइम है जब आप आंसर राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो. बिकॉज फाइनल रिफाइनिंग होगी प्री और मेंस के बीच. जो बेस बनना है आंसर राइटिंग का वो आपका अभी बनेगा, राइट. देन फोर्थ इज, आर यू स्टडिंग स्मार्टली. इट इज नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट मैटर, इट इज व्हाट यू आर रीडिंग, हाउ यू आर डिवोटिंग योर टाइम. People are studying for 12 hours
and they are not cracking prelims. People are saying 6 hours and they are cracking UPSC. Why? Because on those 6 hours, the candidate is studying whatever is relevant for this exam. While a candidate who is studying for 12 hours is just reading anything extra. Because this exam में आपको PhD नहीं करनी है. You have to be very, very specific and you have to be very, very smart what you are reading. Right? So, in our program, Nitya Pragati, we provide you with weekly plan in which we tell you the dimensions and the topics you need to study based on the PYQ analysis and based on our predictions. तो आपको उसके बाहर नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है और उतना ही जितना हम डायमेंशंस दे रहे हैं उसको आप रीड कर लो, यू आर डन विद इट. तो इस तरह से देखो टॉपिक में किसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. दैट इज हाउ वी डू इट सो दैट the candidate or the student are only studying things that are relevant to the exam, right? Fifth is, do you have a proper timetable and are you adhering to this timetable? Because timetable बनाना एक बात है, but timetable को अगर आप implement नहीं कर रहे हो तो do you have somebody जो आप पे accountability रखे, right? Because timetable, first of all, it should be scientific, it should be based on your strength and weakness. तो इस तरीके से हम नित्य प्रगति में इफ यू सी प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं. हैंड रिटन भी होता है, प्रिंटेड भी होता है कि भाई मंडे को जैसे आप 5 AM to 8 AM क्या करोगे, 9 AM to 2, एंड देन उसके बाद आप ये देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, राइट? तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट और डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट भी है जो आपको शेयर करनी पड़ती है अपनी मेंटर के साथ कि ये ठीक है, आपने टाइम टेबल ये इतना दिया था मुझे and this is what I have been able to do it. ठीक है? Similarly, are you studying current affairs smartly? I've seen people wasting 3-4 hours every day referring to multiple magazines for current affairs and multiple newspapers. See, current affairs is something you need to be very smart. You cannot devote more than 1.5 hours on current affairs, because if you devote more than that, then you are compromising on your optional and your GS static part. Right? Plus, it's very important that you should have one-stop solution for current affairs, and that is what we have in Nitya Pragati program, because the current affairs module of Mudit sir is also included in this. So, prelims, mains, सारा current affairs आपको यहाँ से मिल जाएगा. And sir की predictions, तो we all know that he is the giant king of current affairs. Whatever he says, वो एग्जाम में आता है. तो आपको सिर्फ यही करना है करंट अफेयर्स के लिए, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है? देन आर यू डूइंग राइट असेसमेंट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रीलिम्स भी एक इट्स ऑल्सो एलिफेंट इन द रूम. यू कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर इट. सो you are how will you ensure that you are doing right assessment is by giving the test. So we have prelims test series also, which is part of the Nitya Pragati program. And we have this report card system जहां पे आप जब आप टेस्ट दो तो उसके बाद आपके जो गलत क्वेश्चंस हैं, you have to analyze that those wrong questions are because of which gap: awareness gap, conceptual gaps, silly mistake gap, revision gap, factual gap, and guesswork or intuition gap. And based on that आप बताओ अपने मेंटर को कि ये मेरी दिक्कतें हैं, अब आप बताओ सोल्यूशन क्या है. ठीक है? ठीक है? तो दैट्स ऑल दीज गैप्स जो हैं उसी को इंटीग्रेट करके ही हमने जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है नित्य प्रगति, वो हमने स्टार्ट किया. द न्यू बैच इज लॉन्च्ड. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of September एंड इट हैज everything 1-to-1 personalized mentorship. मेरे 40 lectures including 10 to 15 lectures on answer writing, जहां पे I will teach templates which I have taught 550 plus rankers. Plus, other than that, I will take sessions for prelims, for current affairs, etc. Similarly, mains test series है, prelims test series है, daily answer writing है. सारा कंटेंट हम आपको देंगे, सारा कंटेंट हम आपको देंगे, और वो कंटेंट भी बहुत अच्छा कंटेंट होगा. आपके नोट्स बनवाएंगे, आपके आंसर राइटिंग करवाएंगे. तो वन स्टॉप सोल्यूशन है टू योर प्री कम मेंस कम इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड जस्ट इंश्योर, सी वेदर यू ज्वाइन और डोंट ज्वाइन, इट डज नॉट मैटर. इंश्योर करो कि जो मैंने चेकलिस्ट बताई है वो आपको करनी है पूरी, वो आपको इंश्योर करनी है कि यू आर डूइंग इट.
बिकॉज वो बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्रैक द नेक्स्ट ईयर एग्जाम. थैंक यू.